My dear students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing questions from slot 2 of CAT 2024. All the 22 quant questions we'll be discussing. Start करते हैं session. So first question. The first question is that there are 4 towns P, Q, R and S. And from P to Q, there are 3 direct routes. From Q to S, there are 4 direct routes. From P to R, 4 direct routes. And then there are some direct routes between Q and R and S. कितने हैं वो नहीं पता, but let us say Q से R तक A direct routes हैं और R से S तक B direct routes हैं, and there is no direct route between P and S. Then the first part of the question is saying that from P to S, total number of routes are 62. From P to S, routes via Q or via R or via Q then R, total routes are 62. So if you go directly from P to S via Q, 3 into 4 number of ways कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे. ठीक है, via Q 3 into 4 plus via R 4 into B, because 4 ways है P से R तक और R से S तक है B, तो plus 4 into B, and via Q then R, so number of ways हो जाएंगे 3 ways है P से Q तक, Q से R तक A है, R से S तक B है, तो 3 into A into B, so plus 3AB, this is equal to 62. यानी कि 4B plus 3AB, this will be equal to 50. This will be first equation. Then second given information is that from Q to R, total number of routes are 27. The routes which are direct from Q to R or via P or via S. टोटल 27 है. ठीक है, तो डायरेक्ट रूट्स हमारे कितने हैं? डायरेक्ट रूट्स आर A प्लस वाया P फ्रॉम Q टू R, तो Q से P तक, देन फ्रॉम P टू R, सो 3 into 4 12 हो जाएगा, प्लस वाया S Q से S एंड देन फ्रॉम S टू R, तो 4 into B. This is equal to 27. So A plus 4B will be equal to 15. 4B plus 3AB is equal to 50 and A plus 4B is equal to 15. ठीक है, अब A plus 4B equal to 15 को सॉल्व करना थोड़ा इजी है, तो पहले यहाँ से वैल्यूज निकाल लेते हैं फॉर A and B. तो A plus 4B, this is equal to 15. So if we put A is equal to 1 पे सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं, A is equal to 3 पे पहला सॉल्यूशन मिलेगा, A is equal to 3, B is also equal to 3. ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन क्या होगा? 3 plus 4, A will be equal to 7, B will be equal to 2, A will be equal to 11, B will be equal to 1, या फिर A will be equal to 15 and B will be equal to 0. दो लास्ट वाला आंसर नहीं होगा, बट फिर भी these are the solutions कि 3 3 7 2 11 1 and 15 0. अब देखते हैं इनमें से कौन सा सॉल्यूशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को. 4B plus 3AB is equal to 50, B तो कॉमन आ गया, तो 4 plus 3A into B, this is equal to 50. So B must be a factor of 50, तो B हमारा पहला वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, सेकंड और थर्ड को बेसिकली चेक करना है. सो इफ A is equal to 7, 7 to 3 21 plus 4 25, तो A is equal to 7, B is equal to 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है. दिस इज सेटिस्फाइंग. और क्वेश्चन में हमसे एग्जैक्टली A का वैल्यू ही पूछा था कि नंबर ऑफ डायरेक्ट रूट्स बिटवीन Q एंड R, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ A. सो A comes out to be equal to 7 and that will be the answer. A will be equal to 7. ओके, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. X and Y are real numbers such that 4x square plus 4y square minus 4xy
minus 6y plus 3, this is equal to 0. And we have to find out value of 4x plus 5y. What will be value of 4x plus 5y? Okay. ठीक है. So this is given 4x square plus 4y square minus 4xy minus 6y plus 3, that is equal to 0. Okay. तो somehow हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चंस में. अप्रोच वही होता है. ठीक है. सो 4x स्क्वायर है यानी कि 2x का होल स्क्वायर है, 4y स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर है, बट फिर 4xy गिवन है और फिर 6y भी गिवन है. तो अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर्स बनाने हैं तो एक टर्म तो हमारा 4xy आ रहा है विच इज क्रूशियल. और वो टर्म कब आएगा? हमारा 4xy टर्म तब आएगा जबकि हम x और y को मल्टीप्लाई करेंगे. यानी कि एक टर्म तो x का बनेगा और x का सेपरेटली 6y तो बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, बट x का सेपरेटली अलग से कोई टर्म नहीं आ रहा है. ठीक है. यानी कि x प्लस समथिंग होल स्क्वायर तो नहीं है, x प्लस सम कांस्टेंट होल स्क्वायर वाला केस तो नहीं बनेगा, बट y माइनस सम कांस्टेंट होल स्क्वायर वाला केस तो बनेगा बिकॉज दैट इज वाइज माइनस 6y इज अ वन टर्म और फिर माइनस 4xy है यानी कि x प्लस y या x माइनस y काइंड ऑफ टर्म बनेगा. ठीक है. तो पहले तो 4x स्क्वायर को लिख दो, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा. Okay, then we can write 4xy as minus 2 into 2x into y. तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वी नीड प्लस वाई स्क्वायर. अभी जो 3y स्क्वायर बच गया है इसको अलग से लिख लो. तो प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0. नाउ दिस फर्स्ट थ्री टर्म्स मेक अ परफेक्ट स्क्वायर दैट इज 2x माइनस y होल स्क्वायर. और लास्ट थ्री टर्म्स में से 3 कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 यानी कि दिस विल ऑल्सो बी 3 टाइम्स ऑफ 2y नहीं सिर्फ y plus 1 whole square and total sum is 0. Now these two are perfect squares, so they will always be greater than or equal to 0, but sum are as 0. So if and only if this is only possible if and only if 2x minus y is equal to 0 and y plus 1 is also equal to 0, यानी कि 2x is equal to y and y is equal to minus 1. So if y is equal to minus 1, x क्या आ जाएगा? 2x is equal to minus 1, तो x will be माइनस 1/2. एक सेकेंड ये प्लस 6y क्यों कर दिया? माइनस 6y था, उलट पुलट हो गया इसी चक्कर में सब कुछ. ठीक है. सो दिस विल बी y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y विल बी प्लस 1 एंड x विल बी प्लस 1/2. ठीक है. सो हमें चाहिए 4x प्लस 5y. सो क्या वैल्यू आ जाएगा? x इज हाफ, y इज 1, तो 4x प्लस 5y विल बी इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1, तो 4x विल बी 2, 5y इज 5, 2 प्लस 5 आंसर विल बी 7. सो इस केस में भी आंसर हमारा 7 ही आएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3, there is a trapezium ABCD such that AB is parallel to CD and AD and BC are extended and they meet at some point E, extended to E, point E. It is also given that AB is equal to 2 centimeter, CD is equal to 1 centimeter and perimeter of ABCD, this is equal to 6 centimeter. So question is asking कि AEB का perimeter क्या होगा? Perimeter of triangle AEB. Okay, let us make the diagram first. तो ABCD, this is AB, this is CD, and then we are extending AD and BC, and they are intersecting at one point E. Okay, then it is given that AB is equal to 2 centimeter, CD is equal to 1 centimeter. ठीक है. So since this is a trapezium, तो AB and CD must be parallel. AB और CD तो पैरेलल होंगे. Isn't it so? AB और CD पैरेलल है, given भी है. AB CD पैरेलल है और CD is 1/2 times AB. So AB is parallel to CD and CD is equal to 1/2 times AB. Triangle EDC और EAB similar triangles होंगे और since CD is 1/2 times AB, तो C and D must be midpoints. And if these are midpoints, so if DA length this is equal to X and CB length this is equal to Y,
So ED length will also be equal to x and EC will also be equal to y because D is the midpoint. तो AD will be D and C is the midpoint. तो EC will be equal to BC. ठीक है, पेरीमीटर गिवन है हमें ABCD का विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा हमारा 2 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 6 यानी कि x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 3. और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल AEB. तो इसका पेरीमीटर हमारा आ जाएगा 2 प्लस एक्स यानी 2x प्लस 2y यानी कि 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y. सो 2x प्लस y 3 है. दिस विल बी 2 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. आंसर विल बी 8 इन दिस केस. ठीक है, ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम 7, 8, 9, 10. तो आंसर हमारा 8 आ जाएगा. ओके, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. दिस वॉज अ केस ऑफ 4 किसिंग सर्कल्स जो हमने डिस्कस किया था सर्कल्स में. सो 3 सर्कल्स with equal radius r, they are touching each other externally. So shape will be somewhat like this. बड़े खराब सर्कल्स बन रहे हैं. ओके, दे आर इक्वल सर्कल्स. और फिर एक छोटू सा सर्कल है विच इज इनसाइड बिटवीन these 3 सर्कल्स. ठीक है, देयर आर 2 सर्कल्स x एंड y. वन सर्कल इज टचिंग एंड बोथ these सर्कल्स आर टचिंग ऑल 3 सर्कल्स. ठीक है, both these circles are touching all these 3 circles. So one circle है हमारा x छोटू वाला और एक होगा बड़ा वाला सर्कल y. Okay. So radius of x circle inside circle will be less than radius of y circle. Okay. और लार्जर सर्कल और स्मॉल सर्कल का रेडियस का रेशियो हमसे पूछ रहा है कि what will be ratio of larger circle and smaller circle. That is the question. Okay, so if you connect the centers of all these circles, and since question में रेशियो पूछा है तो रेडियस r की वजह हम इक्वल टू 1 मान लेते हैं. ठीक है, रेडियस ऑफ ऑल दीज सर्कल्स इज इक्वल टू 1 ये एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि रेशियो में तो r वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, so let us say this is equal to 1. Now connect the center of the chotu wala circle with this. ठीक है, so focus on this distance. ये distance कितना आएगा हमारा भाई? let us say this triangle is triangle ABC and the inside point this is O. ठीक है, O is the center of the smaller circle and the larger circle. Smaller circle that has the radius rx और larger circle that has the radius ry. ठीक है, सो टोटल हमारा OC लेंथ क्या आ जाएगा? OC लेंथ दिस विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ दीज सर्कल्स विद इक्वल रेडियस प्लस रेडियस ऑफ छोटू वाला सर्कल. ठीक है, सो लेट अस से rx को हमने मान लिया स्मॉल r और ry को मान लिया कैपिटल R. तो OC विल बी इक्वल टू स्मॉल r प्लस 1 एंड OC सिंस ट्राइंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्राइंगल. ट्राइंगल ABC हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है. So OC will be circumradius of that triangle, isn't it so? ठीक है, circumradius होगा और क्या लेंथ आ जाएगा हमारा? This will be 2/3 of the median और मीडियन हमारा कितना है? √3 into 2 by 2. तो √3 by 2 into 2 ये तो मीडियन है और इसका भी 2/3 होगा. तो 2√3/3 यानी कि 2 by √3. दिस विल बी OC लेंथ विच इज r+1. तो यहां से स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी
2/√3 minus 1. And if this point is P, so OP will be radius of the larger circle, which is capital R. So capital R will be equal to OP, which is equal to 1 plus OC. So this will be 2/√3 plus 1, which is capital R. Okay. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2 minus √3 upon √3, this is small r, और 2 plus √3 upon √3, this is capital R. ओके, तो स्मॉल कैपिटल आर इज टू स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी. दिस विल बी इक्वल टू 2 plus √3 अपॉन √3 डिवाइड बाई 2 minus √3 अपॉन √3. √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 plus √3 बाई 2 minus √3 आंसर आ जाएगा. बट सिंस ये किसी ऑप्शन में गिवन नहीं था तो रैशनलाइज करोगे डिनोमिनेटर को, 2 minus √3 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 2 plus √3 से मल्टीप्लाई करोगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 2 plus √3 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर हो जाएगा 1. तो आंसर आ जाएगा हमारा 7 plus 4 √3 is to 1. This will be our final answer. 7 plus 4 √3 is to 1. Okay, clear. Next question, question number 5. Question number 5 was that 3 to the power 333 divided by 11, remainder क्या होगा? 3 to the power 333 divided by 11, what will be the remainder? 11 we know कि 3 to the power 10, because 10 is the quotient of 11, divided by 11, remainder will be equal to 1. So we can write 333 as 330 plus 3, यानी कि 3 to the power 333 will be 3 to the power 330 into 3 cube divide by 11, और रिमाइंडर हमारा 3 to the power 330 से तो 1 आएगा, तो 3 क्यूब यानी कि 27 by 11 से रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 5, एंड 5 विल बी द आंसर. ओके, 5 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is that there are two persons, R and G, and question is saying when age of R was same as present age of G, ratio of ages was 3:2. Ratio of ages was 3:2. When G's age becomes same as present age of R, then ratio of ages of R and G क्या होगा? रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आर एंड जी क्या होगा? ओके, सो एक तो देखो ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे वेरिएबल एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करें, बट सेकंड मेथड इज फार मोर इजियर, क्योंकि ऑप्शंस तो हमें गिवन ही है. ठीक है, आर और जी के लिए क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि व्हेन द एज ऑफ आर वाज सेम एज प्रेजेंट एज ऑफ जी, रेशियो ऑफ एजेस वाज 3:2, यानी कि आर की एज जी की एज से हमेशा ही ज्यादा थी. ठीक है, और ये कब रेशियो हमें बता रहा है? व्हेन एज ऑफ आर वाज सेम एज प्रेजेंट एज ऑफ जी, एट दैट टाइम रेशियो ऑफ एजेस क्या था? 3:2. तो ऐसे समझ लो कि दिस 3 यूनिट, दिस इज एज ऑफ आर एट दैट टाइम, तो यही एज अभी होगी गरिमा की. Isn't it so? क्या बात समझ पा रहे हो? यही एज अभी होगी गरिमा की, यही एज अभी होगा जी का. ठीक है, यही एज जी का अभी होगा जो एज आर का था एट दैट टाइम, और डिफरेंस तो हमेशा ही एज का सेम रहेगा. तो डिफरेंस हमारा कितना है? 1 यूनिट का है, तो यही डिफरेंस अभी भी होगा. तो एट दिस टाइम आर का एज क्या होगा? 3 + 1 4. या ऐसे सोच लो कि जी का एज 1 यूनिट से इंक्रीज किया है या 1 ईयर से इंक्रीज किया है, तो आर का एज भी 1 ईयर से इंक्रीज किया होगा, 1 यूनिट से इंक्रीज किया होगा, तो 4:3 रेशियो होगा एट प्रेजेंट. ठीक है, दिस इज पास्ट का है, दिस इज एट प्रेजेंट, 4:3 का रेशियो है. बट क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट विल बी रेशियो ऑफ एज ऑफ आर एंड जी व्हेन जीज एज बिकम्स सेम एज प्रेजेंट एज ऑफ आर. तो अभी प्रेजेंट एज ऑफ आर कितना है? 4 है, तो जी का एज जब 4 हो जाएगा यानी कि 1 यूनिट से इंक्रीज कर जाएगा, तो आर का एज भी 1 यूनिट से इंक्रीज कर जाएगा, हो जाएगा 5. तो रेशियो विल बी 5:4. रेशियो विल बी 5:4. रेशियो ही निकालना था, इसलिए दिस इज द परफेक्ट वे. ओके,
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. There is a container that contains acid and water. Two liters water is added and acid concentration becomes 50%, is now 50%. Okay. If 15 liters more acid is added further, तो पहला स्टेप हमने ये किया, इसके बाद में कर रहे हैं, ठीक है. 15 liters more acid is added, then acid becomes 80%. So question is asking ratio of water and acid initially. Ratio of water and acid initially. Okay. Now let us say initially water and acid का ratio is W/A. W क्वांटिटी है वाटर की, A क्वांटिटी है एसिड की, ठीक है. अब सिंस वी आर एडिंग वाटर, ठीक है, देखो क्वेश्चन से कुछ हिंट भी लो, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शंस गिवन थे. 2 लीटर वाटर इज एडेड एंड एसिड कंसंट्रेशन इज नाउ 50%. तो एक बात बताओ कि अगर हमने 2 लीटर वाटर को ऐड किया है और एसिड कंसंट्रेशन अभी 50%, यानी कि हाफ हाफ है, जितना एसिड है उतना ही वाटर है. और कब है? जबकि हमने 2 लीटर वाटर को ऐड किया है, यानी कि ऐड करने से पहले एसिड का कंसंट्रेशन वाटर से ज्यादा रहा होगा. इजंट इट सो? यानी कि एसिड मस्ट हैव बीन मोर देन वाटर. तो जो ऑप्शन हमें गिवन होंगे उनमें से 2 ऑप्शन तो तुम्हारे वही एलिमिनेट हो जाएंगे जहां पे कि हमें एसिड और वाटर में वाटर ज्यादा दिया होगा इन कंपैरिजन टू एसिड. इजंट इट सो? ठीक है, तो हमारे वही ऑप्शंस काम के होंगे जहां पे कि एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा गिवन ऑप्शन में. क्या ये बात समझ में आता है? ठीक है, तो वाटर और एसिड का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है. ओके, क्लियर है? तो इनिशियली अगर W/A था तो आफ्टर एडिशन ऑफ 2 लीटर्स वाटर हमारा वाटर कितना हो जाएगा? वाटर हो जाएगा W+2. And since now acid concentration 50% है, W+2 will be equal to A, because acid और water अब प्रेजेंट कंडीशन में इक्वल है. फिर हमने क्या किया? वी एडेड 15 लीटर्स एसिड एज वेल, तो अब एसिड हो जाएगा A+15 एंड नाउ एसिड इज 80%. 80% यानी कि 4/5 है, तो 4 यूनिट्स एसिड होगा और 5 यूनिट हमारा टोटल है, यानी कि 1 यूनिट क्या होगा? वाटर होगा. वाटर कितना है? W+2. दिस रेशियो विल बी 4/1. ओके, दिस रेशियो विल बी 4/1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो A+15 विल बी इक्वल टू 4W+8. ओके, एंड एज सच W+2 क्या है? दैट इज इक्वल टू A. तो डायरेक्टली हम W+2 की जगह A भी लिख सकते थे. सो A+15 इज इक्वल टू 4A. ठीक है, सो A विल बी इक्वल टू 5. A will be equal to 5, W will be equal to 3. So W/A will be 3:5. आंसर आ जाएगा वाटर एंड एसिड कंसंट्रेशन विल बी 3:5. ओके, क्लियर है? ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Question is saying Bina incurs a loss of 19% when she sells an item at rupees 4860 to S, and S sells the same article, same item to H at certain profit. So the question is, if Bina had sold same to H directly, profit will be equal to
17%. So question is, what is profit of S? Actual profit of S क्या होगा? So Bina has sold the article to H at 19% लॉस, यानी कि अगर 100 रुपीज का आर्टिकल था तो बीना हैड सोल्ड एट 19 रुपीज लॉस, यानी कि 81 रुपीज पे सेल किया है एच को, और एक्चुअल अमाउंट इज 4860 विच इज 81 इंटू 60, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा बीना का? दैट विल बी 6000 रुपीज, 6000 रुपीज सीपी होगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन इज सेइंग बीना हैड सोल्ड सेम टू एच डायरेक्टली, तो प्रॉफिट कितना होगा? 17% का। तो अगर सेम आर्टिकल को, एक सेकंड, ये एस को सेल किया था, दिस वाज एस, एच को डायरेक्टली सेल किया होता तो प्रॉफिट होता हमारा 17% का, 6 और 1% है 60, 17% हो जाएगा हमारा 1020, यानी कि आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 7020 रुपीज टू एच, और क्वेश्चन है प्रॉफिट ऑफ एस पूछ रहा है, सो दैट विल बी सेलिंग प्राइस विच इज 7020 माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ एस विच इज 4860, so 2160 rupees will be the answer. Profit of S will be 2160 rupees. Okay. Clear है? Question number 9. Okay. ठीक है. Question number 9. Now Anil invested 22,000 rupees for 6 years at the rate 4% compound interest, and compounding is half yearly. At the same time, Sunil invested some amount, let us say amount is equal to S मान लेते हैं. Sunil invested some amount for 5 years at the rate 4% compound interest, and compounding in this case is also half yearly, and then he reinvests the same amount, the entire amount that he receives for 1 year, and reinvests for 1 year at 10% simple interest. Final amount is same for both of them, तो amount invested by Sunil का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, फाइनल अमाउंट इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम, तो S का वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा था, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सुनील का वैल्यू क्या होगा? तो अनिल ने 22,000 इन्वेस्ट किया है, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, और हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, 4% कंपाउंड इंटरेस्ट है 6 ईयर्स के लिए, तो टोटल कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रहा है, यानी कि 12 टाइम पीरियड्स होंगे, और रेट परसेंट कितना होगा? 6 मंथ्स का 2%, तो 1.02 टू द पावर 12, दिस विल बी टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अनिल. सिमिलरली फॉर सुनील, सुनील का अमाउंट अगर एस था तो 5 ईयर्स के इन्वेस्ट किया है, 4% कंपाउंड इंटरेस्ट और हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, यानी कि 10 टाइम पीरियड्स होंगे, 4% तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा 2%, तो 1.02 टू द पावर 10, और फिर ये जो अमाउंट आ गया इसको ही री इन्वेस्टेड फॉर 1% एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि फिर ये अमाउंट टोटल हो जाएगा इंटू 1.10, या 11/10 लिख दो, या फिर 11/10 लिख दो इसको, ठीक है, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन सिंपल है यहाँ पे, और बाहर 22 दिख भी रहा है, दैट इज वाई 11 से काटोगे 2000 बचेगा यहाँ पे, 10 को ले आओगे लेफ्ट हैंड साइड में, दीज टू अमाउंट्स आर इक्वल, तो 20,000 हो जाएगा, और 1.02 टू द पावर 10 को कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 1.02 टू द पावर 2 बचेगा, क्योंकि टोटल पावर 12 था, 12 माइनस 10 2 हो जाएगा, तो S विल बी इक्वल टू 20,000 इंटू 1.02 होल स्क्वायर, और 1.02 का होल स्क्वायर आ जाएगा 1.0404, तो 20,000 इंटू 1.0404, that will be 20808 rupees. This will be the amount invested by S. Sunil. Okay, clear है? ठीक है, is this clear? Question number 10. Question number 10 करते हैं. So the question is, there is a bus that starts at 9 AM on a certain route. There's a bus that starts at 9 AM on a certain route. ठीक है, if it travels at 60 km per hour, 60 km per hour, then the time taken is 3.5 hours more than the scheduled time.
ठीक है, देन टाइम टेकन इज 3.5 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम, लेट अस द शेड्यूल टाइम इज t, तो टोटल टाइम टेकन विल बी 3 + 3.5 इफ द स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि शेड्यूल टाइम पे अगर जब बस पहुंचता है तो स्पीड मस्ट हैव बीन ग्रेटर देन 60, इजंट इट सो? नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे द अदर डे 2/3 ऑफ द डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड, 2/3 distance is traveled in 1/3 of the scheduled time, यानी in t/3 time, 2/3 distance is traveled in t/3 time, ठीक है, and remaining distance यानी d/3 distance is traveled at the speed of 40 km/h, and due to this the bus reaches at scheduled time, at scheduled time. Okay, so question is asking कि यूजुअल शेड्यूल्ड अराइवल टाइम क्या होगा, यूजुअल शेड्यूल्ड अराइवल टाइम क्या होगा इन दिस केस। ओके, तो देयर आर टू वेज टू थिंक अबाउट इट। पहले थोड़ा सा सिंपल वे समझते हैं, उसके बाद में एक क्वेश्चन बना के प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 2/3 डिस्टेंस द अदर डे, द 2/3 डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन 1/3 टाइम। तो अगर 2/3 डिस्टेंस को हमने 1/3 टाइम में ट्रेवल किया है तो बची कितनी डिस्टेंस है, 1/3 है, 1/3 डिस्टेंस बची है, और टाइम कितना बचा है, टाइम 2/3 बचा होगा, 2t/3। तो एट द स्पीड ऑफ 40 द 1/3 डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन 2/3 टाइम, 2t/3 टाइम, इजंट इट सो? तो अगर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया होता, टोटल डिस्टेंस 40 की स्पीड से ट्रैवल किया होता, कंप्लीट डिस्टेंस d ट्रैवल किया होता, तो टाइम कितना लगता, 2t टाइम लगता, बिकॉज d/3 डिस्टेंस ट्रैवल करने में 2t/3 टाइम लगा, d डिस्टेंस ट्रैवल करने में 2t टाइम लगेगा, इजंट इट सो? और इन द फर्स्ट केस 60 की स्पीड से t + 3.5 टाइम लगा है। डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम है, यहां भी डिस्टेंस d ट्रैवल किया है और यहां भी हम डिस्टेंस d के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे स्पीड और टाइम। तो स्पीड का रेशियो तो हमें क्लियरली पता है 60:40 है, यानी कि 3:2 है। तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 2:3। ओके, और सेकंड केस में हमारा टाइम आ रहा है जबकि 40 की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं 2t आ रहा है, तो यहां पे टाइम कितना हो जाएगा हमारा, 2 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 4t/3, क्योंकि 2t/3 1 यूनिट हो जाएगा, सो 4t/3 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू t + 3.5। सो यहां से हमारा t/3 की वैल्यू आ जाएगी 3.5, तो t विल बी इक्वल टू 10.5 आवर्स। आई रिपीट, हमने क्या किया, क्योंकि क्वेश्चन हमें कह रहा है 2/3 डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1/3 टाइम में, तो यानी कि 2/3 टाइम बचा हुआ है, 1/3 डिस्टेंस बचा हुआ है, तो बचा हुआ 1/3 डिस्टेंस 2/3 टाइम में ट्रेवल किया, तभी तो हम शेड्यूल टाइम पे पहुंचे। और स्पीड कितनी थी, 40 की स्पीड से 1/3 डिस्टेंस वॉज ट्रेवल्ड इन 2/3 टाइम। तो अगर 1/3 डिस्टेंस को ट्रेवल किया हमने 2t/3 टाइम में, तो कंप्लीट डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे 2t/3 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि 2t टाइम में ट्रेवल करेंगे। 40 की स्पीड से डिस्टेंस d वॉज ट्रेवल्ड इन 2t टाइम, 60 की स्पीड से डिस्टेंस d वॉज ट्रेवल्ड इन t + 3.5 टाइम। तो हमारा डिस्टेंस सेम है, तो टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। स्पीड का रेशियो है 60:40, यानी कि 3:2, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 2:3, और 3 यूनिट्स की वैल्यू है 2t, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू है 2t/3, 2 यूनिट्स की आ जाएगी 40/3, और 40/3 इज इक्वल टू t + 3.5, यानी कि t/3 इज इक्वल टू 3.5, t इज इक्वल टू 10.5। ठीक है, ये तो एक अप्रोच हो गया इसको सॉल्व करने का। क्या ये अप्रोच समझ में आता है, इज दिस अप्रोच क्लियर? ठीक है, ओके, ठीक है। सेकंड अप्रोच ये हो सकता है इस क्वेश्चन में कि हमें फर्स्ट केस में गिवन है कि t + 3.5 टाइम लग रहा है, स्पीड है 60 का, तो यहां से हम डिस्टेंस d की वैल्यू निकाल सकते हैं। d विल बी 60 इंटू t + 3.5, सो दिस विल बी 60t + 210। ओके, अब सेकंड केस में हमें d/3 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करना है इन 2t/3 टाइम, स्पीड है हमारा 40 का, ठीक है, 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करना है 2t/3 टाइम में, और हमारा स्पीड है 40 का, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम दैट विल बी इक्वल टू स्पीड। डिस्टेंस है 1/3 ऑफ दिस डिस्टेंस d/3, तो d/3 अपॉन 2t/3 विल बी इक्वल टू स्पीड, d/3 आ जाएगा 60t/2 + 210/3 डिवाइड बाई 2t/3, तो बाई 3 वाला पार्ट तो कैंसिल कर दो, एंड दिस इज इक्वल टू 40। तो यहां से हमारा इक्वेशन बन जाएगा 60t + 210, दिस इज इक्वल टू 80t, तो 20t विल बी 210,
टी विल इक्वल टू 10.5 आवर्स। ओके, और फिर अकॉर्डिंगली तुम 9 AM में ऐड करके आंसर निकाल लोगे कि 9 AM प्लस 10.5 आवर्स, 10 आवर्स से 7 PM हो गया, 7:30 PM विल बी द आंसर। तो ये क्वेश्चन में टाइम पूछा था, तो शेड्यूल्ड टाइम विल बी 7:30 PM, दिस विल बी द आंसर। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question is from time and work. This question was slightly lengthy. A and V do a work in 150 days. ठीक है, while V and S do the same work in 100 days. So if we take LCM of these two, 150 and 100, work आ जाएगा 300 units. The efficiency of A and V will be +2. Efficiency of V and S will be +3. 3 units हो जाएगा V और S का efficiency. फिर क्वेश्चन हमसे कहता है कि A worked for 75 days. ठीक है, A started the work, worked for 75 days. Then V worked for 135 days. A worked for 75 days, V worked for 135 days, and then finally S worked for 45 days, and the work was completed. ठीक है, ए ने वर्क किया 75 डेज के लिए, वी ने किया 135 डेज के लिए, और एस ने किया 45 डेज के लिए, और वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। तो एक काम ये कर सकते हो कि यहाँ पे इनमें से किसी एक के लिए वैल्यू एज्यूम कर लो एफिशिएंसी का, फॉर ए और वी और एस, किसी एक के लिए एफिशिएंसी एज्यूम कर लो, बट वो लंबा मेथड होगा। शॉर्टर लंबा मेथड तो नहीं होगा, बट ये वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। बेटर अप्रोच क्या होगा कि हमें पता है कि ए एंड वी कैन कंप्लीट द वर्क इन 150 डेज, यानी कि दोनों का क्यूमुलेटिव एफिशिएंसी हमें पता है, दैट इज 2 यूनिट्स। वी और एस का क्यूमुलेटिव एफिशिएंसी पता है, दैट इज 3 यूनिट्स। तो हम इसी को यूज करते हैं अपने क्वेश्चन में। ठीक है, इसी सेम चीज को यूज करते हैं। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम, हमें पता है कि ए हैज वर्क फॉर 75 डेज, तो ये जो वी का 135 डेज का काम है, इसको तुम 75 प्लस एस ने 45 डेज वर्क किया है, प्लस 45 प्लस 15 ब्रेक कर लो। अब 75 डेज का वर्क वी का क्लब कर दो ए के साथ में। ठीक है, तो दिस विल बी सेम एज कि ए प्लस वी ने 75 डेज वर्क किया, और वी और एस ने 45 डेज वर्क किया, और फिर एस वी ने अकेले 15 डेज वर्क किया। वर्क तो सेम ही होगा ना दोनों केसेस में, चाहे तुम ऐसे देखो या फिर इस तरह से देखो। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अगर ए और वी मिलकर 75 डेज वर्क करेंगे, 150 डेज में कंप्लीट करते हैं, 75 डेज में करेंगे 50% वर्क करेंगे, इजंट इट सो? या 150 यूनिट्स वर्क करेंगे। सिमिलरली वी प्लस एस 100 डेज में कंप्लीट वर्क करते हैं, एफिशिएंसी है 3 1 डे की, तो 45 डेज में करेंगे 135। तो बचा हुआ वर्क कितना बचा? 150 प्लस 135 285, बचा है 15 यूनिट्स वर्क, जो कि वी ने किया होगा 15 डेज में, यानी कि वी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 1 यूनिट। यहां से हमें वी की एफिशिएंसी मिल गई इक्वल टू 1 यूनिट। क्लियर है? ठीक है, वी की एफिशिएंसी आ गई 1 यूनिट। वी प्लस एस की है 3 यूनिट्स, तो एस की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट्स, और ए की एफिशिएंसी आ गई 1 यूनिट। तो ए और वी की एफिशिएंसी सेम है 1 यूनिट, और एस की एफिशिएंसी है 2 यूनिट्स। यहां से हमें एफिशिएंसी की वैल्यू मिल गई। बट क्वेश्चन में से इसके बाद कहता है कि ए हैड स्टार्टेड द वर्क अलोन, ए स्टार्टेड द वर्क अलोन। ठीक है, ऑन एवरी सेकेंड डे वी वर्क्स एवरी सेकेंड डे, एंड एस वर्क्स एवरी थर्ड डे, so in how many days work will be completed? In how many days work will be completed? ओके, ठीक है, ए अकेला वर्क करता है फर्स्ट डे पे, सेकंड डे पे वी वर्क करेगा, बिकॉज वी हर सेकंड डे पे वर्क करता है, और फिर एस हर थर्ड डे पे वर्क करेगा। तो प्रोसेस क्या होगा, ऐसे समझो कि ए वी और एस की एफिशिएंसी हमें पता है, टोटल वर्क कराना है हमें 300। एफिशिएंसीज क्या है? 1 1 एंड 2, 1 1 एंड 2। ओके, ठीक है, सो अब होगा क्या, डे 1 पे ए विल बी वर्किंग अलोन, डे 1 पे वर्क होगा, सिर्फ ए वर्क करेगा और 1 यूनिट वर्क करेगा। डे 2 पे वी वर्क करेगा, और ए तो वर्क कर ही रहा है, तो ए प्लस वी, यानी कि टोटल वर्क होगा 2 यूनिट्स का। डे 3 पे वी तो वर्क नहीं करेगा, बट ए एंड एस विल बी वर्किंग, बिकॉज एस थर्ड डे पे वर्क करेगा, तो 1 + 2 3 यूनिट्स वर्क होगा। फिर डे 4 पे ए और वी दोनों वर्क करेंगे, 2 यूनिट्स वर्क होगा। डे 5 पे ए बेचारा अकेला वर्क करेगा, 1 यूनिट वर्क होगा। और डे 6 पे, क्योंकि दिस इज
डे 2 डे 4 पे वी ने वर्क किया है, डे 6 पे भी वर्क करेगा, और डे 3 पे एस ने वर्क किया, डे 6 पे भी करेगा, बिकॉज हर थर्ड डे पे कर रहा है। तो 6th डे विल बी दैट डे जहां पे कि ए वी और एस तीनों वर्क करेंगे, तो टोटल वर्क हो जाएगा 4 यूनिट्स। सो बेसिकली 6 डेज का साइकिल चलेगा हमारा, बिकॉज हर सेकंड डे पे वी वर्क कर रहा है, हर थर्ड डे पे एस वर्क कर रहा है, तो 2 और 3 का एलसीएम आ गया हमारा 6, यानी कि हर 6 डेज के बाद में साइकिल रिपीट होगा। तो 6 डेज में कितना वर्क हो रहा है हमारा? इन 6 डेज वर्क कंप्लीटेड कितना है? 6 डेज की साइकिल में वर्क कंप्लीटेड इज इक्वल टू 1 + 2 3 + 3 6 + 3 9 + 4 13 यूनिट्स। 13 यूनिट्स वर्क इज कंप्लीटेड इन 6 डेज। हमें वर्क करना है टोटल 300। अब 300 13 का मल्टीपल तो नहीं है, बट क्लोजेस्ट कितना जा सकते हैं? 13 × 20 260 + 39 299, ठीक है। तो 13 × 23 इज इक्वल टू 399, यानी कि 23 हमें कंप्लीट साइकिल्स चाहिए, और एक साइकिल में डेज है 6, तो 23 × 6 138 डेज में कितना वर्क कंप्लीट हो जाएगा हमारा? दिस इज 299, ठीक है। 299 यूनिट्स वर्क कंप्लीट हो जाएगा हमारा। 138 डेज में 299 यूनिट्स वर्क कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद में 1 यूनिट वर्क बचा है, और ए नेक्स्ट डे वर्क करेगा, तो 139th डे हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 139 days will be the answer. This will be the answer. Okay. क्लियर है? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देयर आर 40 एम्प्लॉइज इन अ कंपनी, and in 2022 the average bonus of first 30 employees is 40,000, and average bonus of last 30 employees is 60,000. ठीक है। एवरेज बोनस ऑफ फर्स्ट 10 एंड लास्ट 10 टुगेदर इज 50,000. So average bonus of first 10 and last 10 employees, this is 50,000. Then question is saying कि 2023 में average of first 10 increased by 100% and average of last 10 increased by 200%. Okay. Rest remained unchanged. बाकी सब कांस्टेंट रहा, बस यही वैल्यूज हमारी चेंज हुई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यू एवरेज ऑफ ऑल एम्प्लॉइज क्या होगा? न्यू एवरेज ऑफ ऑल एम्प्लॉइज क्या होगा? इन 2023। तो एवरेज सैलरी फर्स्ट 30 एम्प्लॉइज की 40,000 थी 2022 में, लास्ट 30 की 60,000, और एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट 10 था 50,000। तो सारी कहानी क्या है? 10 की बन रही है, 40 एम्प्लॉइज है, मल्टीपल ऑफ 10 है, ठीक है। सो हम ये एज्यूम कर सकते हैं 40 को क्या कहते हैं? फर्स्ट 10 प्लस 20 और बचे, फिर लास्ट 10, ठीक है। सो हम 40 की बजाय 4 एम्प्लॉइज मान के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी रखने के लिए। सिमिलरली 40,000 60,000 50,000 सब कुछ कहानी है 1000 में, 1000 को अपना 1000 ही रहने देते हैं, के ही रहने देते हैं, ठीक है। सो लेट अस से 4 एम्प्लॉइज आर देयर, 40 के बजाय 4 एज्यूम कर लिया, और 4 एम्प्लॉइज हैं हमारे, एम्प्लॉइज हैं लेट अस से ABCD, ठीक है। ए इज द फर्स्ट एम्प्लॉय या फर्स्ट 10 एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एवरेज की कहानी है सारी। डी हमारा लास्ट एम्प्लॉय है, लास्ट 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से, समझ लो, और बीच के 20 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं B एंड C। तो फर्स्ट 30 का एवरेज है 40,000 40 मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट 30 का एवरेज है 40,000, और अगर एवरेज 40,000 सम कितना होगा? A + B + C। बेसिकली फर्स्ट 3 का एवरेज है 40, तो फर्स्ट 3 का सम आ जाएगा 120। लास्ट 3 का एवरेज है 60, तो सम आ जाएगा हमारा, लास्ट 3 है BCD, सम आ जाएगा 180। सो यहां से इक्वेशन सॉल्व कर लोगे तो सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन D - A विल बी इक्वल टू 60,000, और फर्स्ट और लास्ट का एवरेज आ रहा है 50, यानी कि सम आ जाएगा 100 के, तो D + A विल बी 100 के। तो D - A 60 के है, D + A 100 के है, यहां से हमारा D और A का वैल्यू आ जाएगा
D विल बी इक्वल टू 2D विल बी 160, तो D आ जाएगा 80 के और A आ जाएगा 20 के। क्या ये पार्ट क्लियर है? तो D आ गया 80 के, D को 80 के पुट कर दोगे तो B प्लस C आ जाएगा हमारा इक्वल टू 100 के। एंड क्वेश्चन इज सेइंग 2023 में एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इंक्रीज बाय 100%, यानी कि A का अमाउंट था 20 के, इंक्रीज करेगा 100%, यानी कि 20 के का इंक्रीज आ जाएगा, तो अब हो जाएगा 40 के। B प्लस C अनचेंज्ड है, 100 के ही रहेगा। D में इंक्रीज आया 200% का, तो ऑलरेडी 80 के था, 160 के से इंक्रीज कर जाएगा, अब हो जाएगा 240 के। टोटल हो गया 240 प्लस 100 प्लस 40 380 के, ये टोटल है, तो एवरेज हो जाएगा डिवाइड बाई 4, यानी कि 95,000, 95 के। दिस विल बी द आंसर। ओके, आंसर आ जाएगा हमारा 95,000 फॉर टोटल। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Now this was a repeated question, last year का repeated question था कि a fruit seller has some mangoes, bananas and apples with at least one fruit of each type. Mangoes, bananas, apples. Okay. At the start of the day, the number of mangoes make up 40% of the stock. तो अगर मैंगोज हमारे 40% है, 40% यानी कि 2/5 at the start. ठीक है, 2/5 में लेट अस से 2m इज द नंबर ऑफ मैंगोज, तो अगर 40% ऑफ स्टॉक है, टोटल स्टॉक कितना हो जाएगा 5m, टोटल स्टॉक विल बी 5m, तो बनानाज एंड एप्पल्स विल बी 3m इन टोटल। ओके, ठीक है। देन क्वेश्चन हमसे कह रहा है दैट ही सेल्स हाफ ऑफ द मैंगोज, हाफ ऑफ द मैंगोज को सेल कर देता है, तो दिस इज टोटल इनिशियली ओपनिंग स्टॉक। सोल्ड आइटम्स आर हाफ द मैंगोज, यानी कि m मैंगोज आर सोल्ड। नाउ ही ऑल्सो सेल्स 96 बनानास एंड 40% ऑफ द एप्पल्स, तो जितने भी एप्पल्स टोटल हैं उसका 40%, यानी कि 2/5 एप्पल्स को सेल कर दिया है। ठीक है, तो 40% एप्पल्स को सेल कर दिया है, तो इनिशियली हम एप्पल्स मान लेते हैं 5a, तो 2a एप्पल्स को सेल कर दिया, तो बचेंगे एप्पल्स 3a, m हमारे मैंगोज बचेंगे, और इनिशियली बनानास कितने होंगे, क्योंकि टोटल इनिशियली है बनाना प्लस एप्पल्स है 3m, तो बनानास विल बी इक्वल टू 3m minus 5a. Okay, clear है? And question is saying that at the end of the day he sells total 50% fruits, यानी कि this is 50% of total, this total is 50% of total, 50% स्टॉक सेल कर दिया, 50% बचा हुआ है। ओके, क्लियर है? सो बेसिकली टोटल स्टॉक हमारा कितना था, 5m था, तो 5m विल बी डबल दैट ऑफ द स्टॉक दैट इज सोल्ड, तो 2 टाइम्स ऑफ m प्लस 96 प्लस 2a। सो ओपन करोगे ब्रैकेट को, 5m माइनस 2m, 3m विल बी इक्वल टू 192 प्लस 4a, ये क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। और क्वेश्चन इज आस्किंग कि मिनिमम नंबर ऑफ टोटल फ्रूट्स क्या होगा। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ टोटल फ्रूट्स, यानी कि हमें मिनिमाइज करना है, किसको, 5m को मिनिमाइज करना है, टोटल फ्रूट्स को मिनिमाइज करना है, कितना मिनिमम नंबर ऑफ टोटल फ्रूट्स हो सकता है, तो m को मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो अगर m को हमें मिनिमाइज करना है तो a को मिनिमाइज करेंगे, बिकॉज 3m इज इक्वल टू 192 प्लस 4a, तो a का जितना मिनिमम वैल्यू रख सकते हो वो रखो। क्या रख सकते हैं वैल्यू, a इज इक्वल टू 0 पे क्या काम बन जाएगा हमारा, 192, तो 3 का मल्टीपल है, नहीं है, 192 3 का मल्टीपल है, बट a इक्वल टू 0 हो जाएगा, वहां पे एप्पल्स को 0 हमें करना नहीं है, तो a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, 0 तो नहीं हो सकता है, तो नेक्स्ट वैल्यू किस पे आएगी, जब 0 पे मल्टीपल आ रहा है तो नेक्स्ट वैल्यू 3 पे आने वाला है। ठीक है, तो 3 पुट कर दोगे, a का वैल्यू आ जाएगा 3, तो हमारा 3m का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 192 प्लस 12 204, तो यहाँ से m आ जाएगा इक्वल टू 68, एंड हेंस 5m विच इज द मिनिमम नंबर ऑफ टोटल फ्रूट्स, दैट विल बी 340। आंसर विल बी 340। ओके, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। There is a triangle ABC, and vertices of the triangle are given as 1, 2, 7, 2 and 1, 10, and question is asking in radius of the triangle क्या होगा, in radius of
ट्रायंगल क्या होगा? ओके, यू कैन सी दैट इन टू ऑफ दीज वर्टिसेस y कोऑर्डिनेट सेम है और टू ऑफ दीज केसेस में x कोऑर्डिनेट सेम है, यानी कि सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है। इजंट इट सो? एक सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है। तो तुम डायरेक्टली बिना डायग्राम बनाए भी यहाँ पे डिस्टेंसेस निकाल सकते हो। डिस्टेंस कितना आएगा? इफ दिस पॉइंट इज a, दिस इज b, दिस इज c, तो बिना डायग्राम बनाए भी डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे डिस्टेंस कितना आने वाला है? क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो सेम है, तो डिस्टेंस आएगा हमारा 1 a और b के बीच में, ab विल बी इक्वल टू 6। सिमिलरली बिटवीन a एंड c डिस्टेंस विल बी, क्योंकि x कोऑर्डिनेट सेम है, डिस्टेंस आ जाएगा 2 और 10 के बीच का डिफरेंस विच इज इक्वल टू 8। तो AC इज इक्वल टू 8, AB 6 है, AC 8 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो डेफिनेटली BC विल इक्वल टू 10। ठीक है, 6, 8 और 10 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अदरवाइज यही काम डायग्राम बना के करना है तो वैसे भी कर सकते हो, बट कोऑर्डिनेट सेम थे तो बिना डायग्राम बनाए भी दिख ही रहा है ये चीज। ठीक है, A इज 1, 2, सो 1, 2, देन 7, 2 एंड 1, 10। So this distance is 6, this distance is 8 and this will equal to 10. हमें निकालना है इन रेडियस। ओके, सो क्या आ जाएगा इन रेडियस? इन रेडियस विल बी इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू सेम पेरीमीटर माइनस हाइपोटेन्यूज, या तो ऐसे निकाल सकते हो या फिर एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू आर इंटू एस। ठीक है, एरिया कितना आएगा हमारा? 6 इंटू 8, 1/2 इंटू 6 इंटू 8, which is equal to r into semi perimeter. Semi perimeter will be 8 plus 6, 14 plus 10, 24, तो s is equal to 12 आ गया, तो r into 12। ठीक है, 2 से काटा पीटी की 24 बचा, 24/12 r is equal to 2, या फिर ऐसे निकाल लोगे यहाँ पे कि 12 minus 10 that is equal to 2। हमारा इन रेडियस विल बी 2 यूनिट्स। ठीक है, 2 यूनिट्स हमारा इन रेडियस आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। x plus 6 root 2 to the power 1/2 minus x minus 6 root 2 to the power 1/2 and this is equal to 2 root 2. So find x. x का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, स्क्वायर कर दो इजीली, डायरेक्टली स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने पे दिस विल बी x plus 6 root 2 plus x minus 6 root 2, okay, plus 2 times the square root of x plus 6 root 2 into x minus 6 root 2, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6 root 2 होल स्क्वायर जो कि होगा 72, तो प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, प्लस नहीं बीच में ये माइनस आएगा यहाँ पे बिकॉज a माइनस बी था ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 72 का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 8। 6 रूट 2 से 6 रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 72 दिस इज इक्वल टू 8। 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, और फिर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 72 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ, तो बच जाएगा हमारा x माइनस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 72। अगेन स्क्वायर कर दो, फिर से स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 72। सो 8x विल बी इक्वल टू 88 एंड हेंस x विल बी इक्वल टू 11। x आ जाएगा इक्वल टू 11। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। M and n are natural numbers also given that n is greater than 1, ठीक है, so if it is given that m to the power n this is equal to 2 to the power 25 into 3 to the power 40, then m minus n का वैल्यू क्या होगा? What will be value of m minus n? m to the power n is given as 2 to the power 25 into 3 to the power 40, और m और n दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं। n is also greater than 1, ठीक है, n is greater than 1 क्यों लिखा है? क्योंकि अदरवाइज तुम कैसे 2 to the power 25 into 3 to the power 40 to the power 1, तो n is equal to 1 आ जाएगा और m ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, बट वैसा नहीं है, n is definitely greater than 1, ठीक है। सो कैसे लिख सकते हो इसको? 2 to the power 25 into 3 to the power 40 को हमें समहाउ लिखना है, सम नंबर टू द पावर सम अदर नंबर,
यानी कि 2 और 3 को हमें किसी तरह से कंबाइन करना पड़ेगा और एक कांस्टेंट पावर बाहर लानी पड़ेगी। तो पावर क्या होनी चाहिए, 25 और 40 दोनों का ही फैक्टर होना चाहिए, isn't it so? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लेटर से लिखा है 2 टू द पावर 10 इंटू 3 टू द पावर 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर ना 2 टू द पावर 5 होल स्क्वायर। सिमिलरली 3 स्क्वायर होल स्क्वायर, उसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर होल स्क्वायर। सेम कहानी करनी है यहाँ पे, ठीक है। सो पावर हमारा 25 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 टू द होल पावर 5, 25 और 40 का HCF आ जाएगा 5। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 5 टू द होल पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 8 टू द होल पावर 5, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 8 टू द होल पावर 5, यानी कि m आ जाएगी ये वैल्यू बेस वैल्यू, और दिस इज n आ जाएगा 5, n विल बी इक्वल टू 5। ओके, m विल बी 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 8, तो m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमको। 2 टू द पावर 5 इज 32, 3 टू द पावर 4 है 81, 6561 हो जाएगा 3 टू द पावर 8, 32 इंटू 6561, और n इज इक्वल टू 5। m माइनस n निकालना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऑप्शंस गिवन थे, ऑप्शंस में तुम अगर लास्ट के डिजिट्स को देख लेते तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाता इजीली, बिकॉज 2 इंटू 1 इज 2, -5 कर रहे हो तो लास्ट में यूनिट डिजिट 7 आएगा। हो सकता है यूनिट डिजिट एक से ज्यादा ऑप्शंस में आ रहा हो 7, ठीक है, बिकॉज मैंने ऑप्शंस एक्जैक्टली देखे नहीं है, तो एक से ज्यादा ऑप्शंस में आ रहा होगा, तो लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी पड़ेंगी। अदरवाइज अभी तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं m माइनस n को। m की वैल्यू क्या आने वाली है 32 इंटू 6561, तो m माइनस n विल बी इक्वल टू 32 1 32, 2 आ गया, 3 कैरी हो गया, 32 6 जार 192 प्लस 3 195, 5 19 कैरी हो गया, 160 प्लस 19 179, 17 कैरी हो गया, फिर 192 प्लस 17 तो 209, 209 एंड 52 माइनस 5, तो दिस विल बी 209,947, दिस विल बी द आंसर। ओके, 209,947, दिस विल बी द आंसर इन दिस केस। क्लियर है? Question number 17. So question number 17 is saying, find the value of x such that 1 upon x plus 5, this is less than or equal to 1 upon 2x minus 3. A simple question of inequality. So 1 upon x plus 5 minus 1 upon 2x minus 3, this is less than or equal to 0. LCM ले लोगे, so 2x minus 3 minus x minus 5 upon x plus 5 into 2x minus 3, this is less than or equal to 0. 2x minus x आ जाएगा x, तो x minus 8 upon x plus 5 into 2x minus 3 less than or equal to 0. क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं हमारे, -5 है, 3/2 है और 8 है, सारी पावर्स ऑड है, ठीक है। सो डेफिनेटली x इज ग्रेटर देन 8 तो पॉजिटिव आएगा वैल्यू हमारा, फिर नेगेटिव अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, और क्वेश्चन में हमें लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए वैल्यू, और क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रहा है x प्लस 5 एंड 2x माइनस 3, सो x कैन नॉट बी इक्वल टू -5 और 3/2, तो -5 या फिर 3/2 तो नहीं हो सकता है क्योंकि इक्वालिटी भी है यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू है, ओके। बट -5 होना पॉसिबल नहीं है, तो -5 पे हमारा ओपन ब्रैकेट आएगा, 3/2 भी नहीं हो सकता है तो ओपन ब्रैकेट आएगा, बट 8 पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा x इज लेस देन -5 और 3/2 is less than x and x can be equal to x. So this will be our solution in this case. This will be the answer. Okay. Clear है? ठीक है? This will be the answer. Question number 18. Alpha and beta are roots of the equation 3x square plus lambda x minus 1 is equal to 0, and also given as 1 upon alpha square plus 1 upon beta square, this is equal to 15. So we had to find value of alpha cube plus beta cube whole square. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल स्क्वायर्ड, ओके, ठीक है। तो यहां से फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन गेट वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो मिल जाएगा, बट वो वैल्यू मिलेगा हमें लेमडा के टर्म्स में, बट अल्फा इंटू बीटा तो डायरेक्टली मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1/3, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू -1/3,
ठीक है, अब यहां से एलसीएम ले लो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज 15. So alpha square plus beta square will be equal to 15 times of alpha square into beta square. तो this is 15 into alpha into beta क्या है -1/3, alpha into beta का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा -1/3 का होल स्क्वायर. सो 15/9 यानी कि 5/3 हो जाएगा. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5/3. ठीक है, ओके, क्लियर? इज दिस क्लियर? अब हमें चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर. और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, और इसका होल स्क्वायर चाहिए. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम चाहिए हमें यहां से. कैसे निकालोगे? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. ओके, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है 5/3, अल्फा बीटा है -1/3, तो 5/3 प्लस 2 इंटू -1/3, दिस विल बी इक्वल टू 1. तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहां से हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मिल जाएगा +-1, दिस विल बी इक्वल टू +-1. ओके, पुट कर दो वैल्यूज. अल्फा प्लस बीटा मिल गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है, अल्फा बीटा पता है, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा +-1. स्क्वायर करोगे तो अल्टीमेटली +1 ही आएगा. ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ रहा है, 5/3 आ रहा है. 5/3 माइनस अल्फा बीटा तो -1/3. सो 5/3 प्लस 1/3 6/3 यानी कि 2 आ जाएगा. तो +-2 होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 4. आंसर आ जाएगा 4. इज दिस क्लियर? ठीक है, 4 विद आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. एक इनफाइनाइट सीरीज गिवन था इस क्वेश्चन में, और जिसका कि सम हमें फाइंड आउट करना था. एंड सीरीज था 1/5 इंटू 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/5 स्क्वायर इंटू 1/5 स्क्वायर माइनस 1/7 स्क्वायर. ठीक है, एंड सो ऑन. अब इसमें क्या करोगे, देखो पहले तुम फर्स्ट टर्म देखो, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म देखो, और ऐसे ही आगे फर्स्ट टर्म देखोगे तो ये एक अपनी जीपी बना रहे हैं. सिमिलरली सेकेंड टर्म्स, ठीक है, तो सेपरेट कर लो. तो हमारा बन जाएगा 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 टू द पावर 4 प्लस 1/5 टू द पावर 6 एंड सो ऑन. ये एक जीपी है. और माइनस 1/5 इंटू 1/7 विच इज 1/35 प्लस 1/35, माइनस को कॉमन ले लिया है, 1/35 स्क्वायर एंड सो ऑन. दिस इज सेकंड जीपी. और दोनों इनफाइनाइट जीपी हैं, दोनों ही जीपीज हमारी इनफाइनाइट में है. तो फर्स्ट आ जाएगा हमारा 1/25 फर्स्ट टर्म है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/25, क्योंकि कांस्टेंट रेशियो भी हमारा 1/25 है, कॉमन रेशियो भी 1/25 है, प्लस सॉरी प्लस नहीं, बीच में माइनस है, दिस माइनस 1/35 फर्स्ट टर्म है अपॉन 1 माइनस 1/35. सो दिस विल बी 1/25 अपॉन 24/25, तो 1/24 हो जाएगा. सिमिलरली 1/35 अपॉन 34/35, तो 1/34 हो जाएगा. एलसीएम आ जाएगा हमारा 24 और 34 का, 34 इंटू 12 340 प्लस 68 408. सो दिस विल बी 17 माइनस 12 5/408. दिस विल बी द आंसर. 5/408 आंसर हो जाएगा ऑफ दिस सीरीज. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20. Now A, B and C are positive real numbers. ठीक है, also given as that A is greater than 10 and 10 is greater than or equal to B and B is greater than or equal to C, and also given that log of A plus B on the base 8 divided by log of C on the base 2 plus log of A minus B on the base 27 divided by log of C on the base 3, this total is 2/3. तो क्वेश्चन वाज आस्किंग कि मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू लेस देन ए क्या होगा. ठीक है, मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू लेस देन ए क्या होगा. ठीक है, मैक्सिमम
लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू लेस देन ए। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। पहले तो तुम्हें लॉग को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करोगे, देखो बेस को ऑब्जर्व करो। फर्स्ट टर्म है हमारा लॉग ऑफ ए प्लस बी ऑन द बेस 8 है, डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ सी ऑन द बेस 2। तो बेस सेम करना पड़ेगा। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब लिख सकते हो इसको। 2 क्यूब लिखोगे तो बाहर आ जाएगा 1/3। तो ये टर्म हमारा बन जाएगा 1/3 टाइम्स log of a plus b on the base 2 divided by log of c on the base 2 प्लस सिमिलरली यहां पे बेस 3 है, बेस 27 है, 27 को 3 क्यूब लिख दोगे तो 1/3 बाहर आ जाएगा। तो प्लस 1/3 टाइम्स log of a minus b on the base 3 डिवाइड बाई log of c on the base 3 एंड दिस इज इक्वल टू 2/3। 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ऑल्सो log of a अपॉन log of b क्या होता है, log of a on the base b। तो ये हम लिख सकते हैं log of a plus b on the base c प्लस log of a minus b on the base c। 1/3 तो 3 से मल्टीप्लाई करते ही चला गया, इक्वल टू 2 आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 2। नाउ log a plus log b is log of ab, तो दिस विल बी log of a plus b into a minus b log of a square minus b square on the base c which is equal to 2। तो c square will be equal to a square minus b square। So a square will be equal to b square plus c square। a square will be equal to b square plus c square। ओके, अब a तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 10 है, बट b एंड c आर लेस देन, b इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड c इज लेस देन इक्वल टू b। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन a क्या होगा, लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन a। ओके, ठीक है। सो अगर हमें a को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू तो तब निकालेंगे जबकि हम a को भी मैक्सिमाइज करें, तब तो उससे छोटी वाली वैल्यू को लार्जेस्ट करेंगे, मैक्सिमम करेंगे, ठीक है। सो अगर हम a को मैक्सिमाइज करने वाले हैं तो a मैक्सिमाइज होगा a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी कि b और c को हमें मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। बिकॉज a पे तो कोई लिमिट नहीं है, a इज ग्रेटर देन 10, a तो कोई भी वैल्यू हो सकता है, बट a बाउंड है b और c से, बिकॉज b एंड c कुछ भी नहीं हो सकते। a को तो ऐसे अगर तुम सिर्फ इनइक्वालिटी को फोकस करो, a ग्रेटर देन 10, a को तो 100 भी मान सकते हो, बट a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और b और c बेचारे 10 से छोटे हैं या 10 के बराबर एट द मैक्स हो सकता है b, ठीक है। तो 10 का मैक्सिमम वैल्यू b का हो सकता है 10, और c का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है इक्वल टू b। तो मैक्सिमाइज करना है b और c को भी हमें, अगर a को मैक्सिमाइज करना है तो, ठीक है। तो b मैक्सिमाइज होगा और c मैक्सिमाइज होगा। सो b का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 10 और c का भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 10। तो a स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा हमारा इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 200। a स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 200। ओके, सो a का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 10√2 विच विल बी √2 इज 1.414, तो 14 पॉइंट समथिंग। सो सिंस लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू चाहिए हमें लेस देन a, तो आंसर विल बी 14। आंसर इन दिस केस विल बी 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। देयर इज अ फंक्शन f that maps natural numbers to whole numbers, ठीक है, from natural numbers to whole numbers, and f is such that f of xy this is equal to fx into fy plus fx plus fy, also given that f of a prime number p is equal to 1, ठीक है, f of a prime number is equal to 1 for every prime p। So question is asking value of f of 1,60,000 क्या होगा, f of 1,60,000 क्या होगा, ठीक है। So if f of prime number is always equal to 1, तो we can say that f of 2 will be equal to 1, f of 3 will be equal to 1, f of 5 will be equal to 1। सारे प्राइम नंबर्स का f का वैल्यू 1 होगा, फंक्शन का वैल्यू 1 होगा, सारे प्राइम से, ठीक है। f of 16,000 निकालना है और हमें रिलेशन दिया है f of x y इज इक्वल टू fx इंटू एफ वाई प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो कैन वी राइट दिस एज f of 16 इंटू 10,000,
ब्रेक कर रहे हैं बिकॉज हम F2 निकाल सकते हैं, तो F2 का स्क्वायर भी निकाल पाएंगे fxy का यूज करके, F4 निकाल पाएंगे, ठीक है, F16 भी निकाल पाएंगे बिकॉज F16 क्या होगा, 16 यानी 4 का स्क्वायर, तो F2 से F4 निकालेंगे, F4 से F16 निकालेंगे। सिमिलरली F5 भी कनेक्ट कर पाएंगे हम, F2 और F5 से F10 निकाल पाएंगे, F100 निकाल पाएंगे, F10,000 निकाल पाएंगे, दैट इज वाई हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया, ठीक है। सो F16 इंटू F of 10,000 प्लस F of 16 प्लस F of 10,000, ओके। और भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, हमारा पर्पज है अल्टीमेटली यहां तक पहुंचना। तुम 16,000 को 1,60,000 को ऐसे ही ब्रेक कर सकते थे कि दिस इज 16 इंटू 10,000, 10,000 क्या होगा 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 4, तो इसको 2 to the power 8 इंटू 5 to the power 4 लिख के भी ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, अगर तुमने एग्जाम में ऐसे सॉल्व किया हो f of 2 to the power 8 इंटू f of 5 to the power 4, तो भी आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे सॉल्व किया होगा तो भी चलेगा, ओके। तो बहरहाल f2 हमारा 1 है, ठीक है। f of 4 क्या आएगा, f of 4 क्या आएगा, f of 4 यानी 2 इंटू 2, f2 इंटू f2 प्लस 2 टाइम्स f2 बाई f2 प्लस f2, तो f2 है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, दिस विल बी 3, ठीक है, विच इज 2 स्क्वायर। f of 16 क्या होगा, f4 इंटू f4 प्लस 2 टाइम्स f4, तो 3 इंटू 3 9 प्लस 6 15 आ जाएगा, ओके। सिमिलरली f of 10 क्या आएगा, f2 है 1, f5 है 1, तो दिस इज f2 इंटू f5 प्लस f2 प्लस f5, सो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 3। f of 100 10 का स्क्वायर, ऑलरेडी हमने जो वैल्यू निकाला है f16 के लिए वही सेम वैल्यू 15 आ जाएगा। f of 10,000 यानी 100 का स्क्वायर, दैट विल बी f100 इंटू f100 प्लस 2 टाइम्स f100, सो 225 प्लस 30 255 आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो अब चाहे तो इस मेथड से निकाल लो, तो उसके लिए f of 16 निकाल चुके हो, f of 16 स्क्वायर 256 निकाल लोगे, वो भी 255 आएगा, तो यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, अदरवाइज ऐसे कर लोगे। तो हम कैलकुलेट करते हैं f16 इंटू f10,000, दैट विल बी f16 कितना है 15 है, तो दिस इज 15 इंटू 255 प्लस 15 प्लस 255, so this becomes 16 into 255 plus 15, 16 into 255 plus 15, 16 into 250 4,000 plus 80 plus 15 4,095 will be the answer। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4,095, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन। The question is if mod of x plus x plus y, this is equal to 15 and x plus mod of y minus y, this is equal to 20, तो find x minus y। अब बेसिकली यहाँ पे क्योंकि मॉड वैल्यूज हैं, 4 केसेस बनेंगे, x और y बोथ पॉजिटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, ठीक है। अब देखो एक चीज और जो समझ में आती है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि सिंपल मेथड है, यहाँ पे देखो तुम अगर ऑब्जर्व करो फर्स्ट इक्वेशन को, मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स है, तो अगर x हमारा नेगेटिव होगा, मॉड ऑफ एक्स विल ओपन विद द नेगेटिव साइन, कैंसिल आउट हो जाएगा x हमारा और डायरेक्टली y की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहला केस हम ले सकते हैं यहाँ पे कि x इज लेस देन 0, सो इफ x इज लेस देन 0 मॉड x विल बी माइनस x प्लस x प्लस y विच विल बी इक्वल टू y ओनली, और y इक्वल टू 15 आ जाएगा यहाँ से। सेकंड में पुट कर दोगे y इक्वल टू 15, सेकंड इक्वेशन क्या है x प्लस मॉड y, और क्योंकि y पॉजिटिव आया है तो x प्लस 15 माइनस 15 दैट इज 20, तो यहाँ से x हमारा 20 आ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है x तो हमारा लेस देन 0 है, तो कैन नॉट बी 20, तो नो सॉल्यूशन, x लेस देन 0 पे नो सॉल्यूशन मिलेगा। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में मॉड y माइनस y, अब ये देखो लिख रहे हैं तुम्हें समझाने के लिए, अदरवाइज एग्जाम में तुम देखोगे, देखते ही ऑब्जर्व करोगे y 15 आ रहा है, सेकंड में पुट करोगे y 15, तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, x आ जाएगा 20, बट तुमने तो एज्यूम ही किया था x को लेस देन 0, तो यही कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। सिमिलरली सेकंड केस में जब तुम y को एज्यूम करोगे पॉजिटिव, क्योंकि y को पॉजिटिव एज्यूम करते हैं, मॉड y के साथ ओपन होगा, सेकंड इक्वेशन में मॉड y माइनस y यानी कि y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हें x का वैल्यू मिल जाएगा डायरेक्टली। तो जब तुम एज्यूम करोगे y को ग्रेटर देन 0, तो दिस विल बी x प्लस सेकंड इक्वेशन x प्लस y माइनस y यानी कि x विल बी इक्वल टू 20, और x 20 पुट कर दोगे तुम फर्स्ट इक्वेशन में, तो 20 प्लस 20 यानी 40 प्लस y इज इक्वल 15, तो y आ जाएगा यहाँ से इक्वल टू माइनस 25, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज y को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना था, यानी कि ना तो x लेस देन 0 हो सकता है, ना ही y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी कि इनका जस्ट ऑपोजिट होगा, y हमारा नेगेटिव होगा, x होगा पॉजिटिव।
ठीक है। सो x करोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y विल बी लेस देन 0। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 2x प्लस y इज इक्वल 15 और y लेस देन 0 है तो x माइनस 2y दिस इज इक्वल टू 20। अब सॉल्व कर लोगे इसको, ठीक है। तो यहां से हमारा 2x माइनस 4y विल बी इक्वल टू 40, ठीक है। अब सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो माइनस 4y माइनस y, तो माइनस 5y विल बी इक्वल टू 25। सो यहां से y आ जाएगा इक्वल टू माइनस 5। सो 2x विल बी इक्वल टू 20, x आ जाएगा इक्वल टू 10, x 10 y माइनस 5। ओके, तो x माइनस y क्या आ जाएगा 10 माइनस माइनस 5 विच विल बी इक्वल टू 15। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल टू 15। क्लियर है, ठीक है। आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी इक्वल टू 15। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस करिए। आई बिलीव जो भी डिस्कस किए क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आए होंगे। एंड दीज वर ऑल द क्वेश्चंस। हाँ, क्वेश्चंस बहुत सारे काफी ट्रिकी थे और कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी जरूर रहे होंगे जहाँ पे कि तुमने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया होगा, यानी कि फंस गए होगे उन क्वेश्चंस में। शायद स्टार्ट में तुम्हें लगा होगा कि ये क्वेश्चन हो जाएगा और फिर बाद में कहीं पे अटके होगे। और क्वेश्चन टाइम टेकिंग है डेफिनेटली, क्योंकि बाद में सॉल्यूशन देना देखो एक बात है, बट एग्जाम कंडीशंस में, एग्जाम प्रेशर में उन सारे के सारे क्वेश्चन को हैंडल करना वो बिल्कुल अलग बात हो जाती है और कई बार वहाँ पे हम अटकते हैं। तो कमेंट में एक बार मेंशन करना कि तुम्हें सेशन कैसा लगा, सीए समझ में आई कि नहीं समझ, किसी क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं है, तो किसी एक दूसरा क्वेश्चन में कहीं पे हो सकता है कि कोई डिफरेंस हो, ठीक है। और एक बार कमेंट में मेंशन करना कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट तुम्हारा एग्जाम में कितना था, कितने बन रहे हैं तुम्हारे, और अगर सेशन अच्छा लगा है, पसंद आया तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।